Namit, are you here with us? Yes, sir. Very well. Excellent. So, ladies and gentlemen, can everybody unmute and welcome Namit with us? एक second, सबका unmute हो गया? Welcome. Hello, Namit. Welcome. Namit ji, welcome. Welcome, Namit ji. Welcome. Hi, Namit. Most welcome. Hi, Namit. Welcome. Very good. Very good. Very good. Okay. So now, ladies and gentlemen, so hi Namit and a very, very welcome to you. Hello, Namit. Hi, sir. Thank Hi. you so much. Good to see you. ये थोड़ा स्क्रीन नीचे कर लो, आपकी शक्ल बस यहाँ से आ रही है. हाँ, अब देखे ना पर्सनैलिटी जो हो एकदम मूछ के साथ एकदम रॉकेट. Okay, so Namit, why don't you introduce yourself? And so let me just tell you a little bit about Namit. Namit is one amazing person who did our program. He is an architect and an interior guy. Architect only or architect and interiors, Namit? No, so we do both of them. So Architecture. architecture, interiors both. Okay, so architecture and interiors both. So Namit does एक second, sorry. हाँ, so Namit does architecture and interiors. So he's in the service sector. आप में से कितने लोग सर्विस सेक्टर में हैं? Are you from service sector? कोई सर्विस सेक्टर के लोग हैं? सर्विस सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, हॉस्पिटैलिटी, सॉफ्टवेयर, company secretary, so fitness. So we're going to talk about how somebody from the service sector can also use these systems and how he can implement these systems. Yes. So how can somebody from the service sector implement these? Because all service sectors are kind of same. Manufacturing एक अलग हो जाता है, retail अलग हो जाता है, service sector अलग हो जाता है, और trading commodity items ये अलग हो जाता है. But these are largely the four sectors. And then of course there is projects. There is projects. Absolutely right. There is projects. So Namit does projects also. So because इसका project environment है. So Namit, why don't you share what has been your journey like and how has it been? What do you do? Which city are you from? How was life like before our program? And how was life now? Right. So my name is Namit Chopra, as sir has already told, and I'm an architect. I'm based out of Jaipur, and we have an architectural practice here, which I run with my wife, who's also an architect. And we do architecture and interior projects, mainly residential, hospitality, hotels, factories, and yeah, interiors. So अलग-अलग scale के projects रहते हैं. So if I say कि जो मेरा before BCI, so I have been in this field for past almost now 16-17 years, and before that I did job for almost 10 years, and then I started my practice after I got married. So before BCI, there was almost 5 to 6 years जब हम लोगों ने अपना काम कर रहे थे. So there was a lot of struggle जो चल रहा था. Yes, Namit. So ये था majorly. और उस टाइम पे क्योंकि जब हम 10 साल पहले जॉब किया था, तो उसमें बहुत सारी चीजें हमारे, क्योंकि काफी सीनियर पोस्ट पे थे, तो चीजें हम लोग ही हैंडल करते थे. तो उस टाइम पे ये चीज था कि किसी और के लिए कर रहे हैं तो अपना काम करते हैं तो चीज होगा. और उस टाइम पे एक इस मिथ में जी रहे होते थे, क्योंकि काम तो सारा हम ही कर रहे हैं, तो अपना बिजनेस जब चलाएंगे तो बहुत ही फोड़ डालेंगे, एकदम रॉकेट बना देंगे. But the reality was much different when we started our own practice. तो जब हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया 2015 के अंदर में, तब से लेके बिफोर BCI बहुत स्ट्रगल्स थे.
प्रोजेक्ट्स जो थे वो टाइमली कंप्लीट नहीं होते थे, ड्राइंग के इश्यूज थे, क्वालिटी के इश्यूज थे, क्लाइंट के साथ बड़ा भसड़ चल रही होती थी। सो ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती थी। तो व्हाट वर द प्रॉब्लम्स यू हैड इफ यू कैन रिमेंबर, बिकॉज अब ना वो प्रॉब्लम गायब सी हो जाती है, आप लोगों को याद ही नहीं रहता कि प्रॉब्लम भी थी कुछ। अभी एक्चुअली जब आप बोल रहे हो ना, तभी मैं वही सोच रहा हूँ कि कौन कौन सी थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो उस टाइम पे बहुत, एक इनिशियली जब प्रोजेक्ट शुरू होते थे तो क्लाइंट के साथ में रिलेशन अच्छे होते थे। जब प्रोजेक्ट एक्चुअल ऑन साइट जब ग्राउंड पे स्टार्ट हो जाता था, तब क्लाइंट के साथ में प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी, क्योंकि टाइमली डिलीवरी नहीं होती थी, क्वालिटी के इश्यूज आ रहे होते थे, तो क्लाइंट हमारे पे चिल्ला रहा होता था, हम अपने ऑफिस वालों पे, एम्प्लॉयज पे चिल्ला रहे होते थे। जो चीजें हमारे थ्रू चली गई या हमने देख लिया वो तो सब ठीक था, बाकी जो चीजें जो हमसे मिस हो गई वो, उसमें कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम, गलती चली गई होती थी। तो साइट पे जाने के बाद ही पता चलता था कि ये हो गया है। और बहुत सारे फिर, अगर एनीबडी यूज इन प्रोजेक्ट, तो दे वुड अंडरस्टैंड कि वहां पे फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता था। और इवेंचुअली सारा का सारा लास्ट में ठीकरा जो है वो आर्किटेक्ट के ऊपर फोड़ा जाता था कि भी इन्होंने देखा नहीं या इनकी ड्राइंग में कमी थी। तो और बाकी ऐसा होता था, इमरजेंसी होती थी, रात को काम कर रहे हो, दिन में काम कर रहे हो, हफ्ते में कितने दिन काम करते थे? वो सिविली, वो तो शुरू के 5-6 साल तो मेरे को याद नहीं है कि कभी भी कोई छुट्टी ली है। 7 days a week हम लोगों का काम चल रहा होता था। संडे को भी? हाँ जी, संडे को भी? संडे को भी, संडे को भी। तो हमारा तो क्या है कि हम लोग उस टाइम पे मैं और सुहानी हम लोग ये बात कर रहे होते थे कि लेबर की तो फिर भी ना महीने में 1 दिन की छुट्टी होती है, अमावस की। हम लोगों की तो आर्किटेक्ट होने के बाद हमारी एक भी छुट्टी नहीं है, क्योंकि जिस दिन साइट पे छुट्टी है उस दिन हम अपना काम कर रहे होते हैं। तो साइट विजिट पे जाना पड़ता था? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली वो तो जाना पड़ता ही है। हफ्ते और में कितने दिन साइट विजिट करते थे? सो ऑलमोस्ट रोज होती थी। तो ये स्केड्यूल उस टाइम पे, मतलब एक जनरल रूटीन था कि कभी फर्स्ट हाफ में, कभी सेकेंड हाफ में हम लोग का वो चल रही होती थी साइट विजिट। कभी जैसे फायर फाइटिंग हुई, वहां से फोन आ गया साइट से, तो इमीडिएटली भाग करके जाना पड़ता था, क्योंकि उस टाइम पे ये डर होता था कि हमारी गलती ना रह गई हो जिसकी वजह से गलती साइट के ऊपर हो रही है। तो ये सब बहुत चीजें थी। बहुत बार ऐसा होता था कि लोग जो हैं, उन लोगों को काम दिया, उन लोगों ने टाइमली काम नहीं किया, पर कमिटमेंट क्योंकि हमारा हुआ होता था साइट के ऊपर में और क्लाइंट को देना होता था, तो हम लोग बैठ करके, वो लोग जो है, स्टाफ जो है, वो तो 6-6:30 बजे चला गया, हम लोग पूरी रात बैठ करके काम कर रहे हैं, अगले दिन सुबह 6 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके बाद ड्राइंग्स भेज रहे हैं, सबमिशन कर रहे हैं। तो ये उस टाइम पे होता था, तब ये सोचते थे कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब पैसा भी दे रहे हैं, लोगों को रखा हुआ है और काम भी खुद ही कर रहे हैं। और एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज वेंडर्स पे होती थी, और उस पे क्या होता था? वो तो डेफिनेटली होती है सर। हमारे फील्ड में कंसल्टेंट्स बहुत सारे होते हैं, स्ट्रक्चर के, एमईपी के, और उन लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत होती है, क्योंकि उनको ड्राइंग भेजा, फिर उनसे ड्राइंग्स आती हैं, तो अगर उनसे डिले हो गया तो चीज़ें टाइमली हमारी डिलीवर नहीं होती हैं। तो ये तो होता ही होता है। बहुत सारे वेंडर्स के ऊपर में डिपेंडेंसी होती है कि उनसे कोट मंगाना है या उनसे कुछ शॉप ड्राइंग्स मंगानी है, जिसके बेसिस पे हमारे को हमारी ड्राइंग्स फाइनलाइज करनी है, तो उनकी टाइमली नहीं आ रही हैं, और वो भी बहुत लेट आ रही हैं, लास्ट मोमेंट पे जाके आती थी। तो हम जब करते थे तो हमारे पास टाइम नहीं होता था, तो फिर हम लोग रात रात बैठ करके वो काम करके उनको दे रहे होते थे। तो ऐसे ये बहुत सारे चैलेंजेस रहते थे उस और टाइम। सेल्स में क्या चैलेंज होता था? सेल्स तो कभी हम करते ही नहीं थे, जो आ गए प्रोजेक्ट वही चल रहे होते थे। तो बहुत बार ऐसा होता था, एक ये भी बड़ा चीज होता था कि कई क्लाइंट्स जिनका काम किया, उन्होंने आगे रेफर किया, और वो चीजें हमारा, क्योंकि हमारी डेली की फायर फाइटिंग में ही हम लोग इतने बिजी हो रखे होते थे कि उनके जो उन्होंने रेफरेंस दिए उनको फॉलो अप नहीं कर पा रहे होते थे। उनसे काम, उनको, उनसे प्रोजेक्ट आ सकता है, बट वो उनसे बात ही नहीं कर पा रहे होते थे। तो कभी कभार ऐसा होता था कि जब याद आया, महीने भर बाद याद आया कि अरे उन्होंने दिया था, वो बात तो करूं, क्या हुआ,
जब बात करी तो पता चला कि वो तो प्रोजेक्ट चला गया, और उल्टा वो नाराज और हुआ, जिसने रेफरल दिया उसने, वो और नाराज हो गया कि यार मैंने तुम्हारे को दिया, तुम्हारे को वैल्यू नहीं है। ये मेजरली ऐसी चीजें चलती सेल्स की कोई स्ट्रैटेजी, सेल्स करने का तरीका, सेल्स होता था, कुछ नहीं होता था? सेल्स करने का तरीका हमारा सिर्फ ये था कि अगर जैसे कहीं पे आ गया, रेफरल आ गया, तो वहां पे हम जा करके अपना कुछ उस टाइम पे काम जो था वो दिखाते थे, बात करते थे, तो प्रोजेक्ट आता था, और या आता था या नहीं आता था, तो बहुत चीजें उसमें थी। अब चीजें काफी बेटर हो गई हैं। तो अब कोर्स के बाद आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिले, आप कैसे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कोर्स से पहले आपके पास कितना स्टाफ था जब आपने कोर्स ज्वाइन किया था? जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था उस टाइम तो कोविड था, और उस टाइम तो मेरे पास कोई स्टाफ ही नहीं था, एक्चुअली एक बंदी थी जो कर रही थी। आपके पास स्टाफ स्ट्रेंथ 1 था? हाँ, वन या टू ऐसे, उस टाइम पे एक या दो बंदी थी। 2 लोग थे आपके पास पूरे स्टाफ में? 2 लोग थे बस। बस? बस वो मेरे को उस टाइम पे आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं 4 डे वाला कोर्स कर रहा था, और आपका, और उसके बाद आपने वो लास्ट में वो क्वेश्चन आंसर सेशंस रखते थे आप, तो मैं वेट कर रहा था कि मैं भी आपसे बात करके ना पूछूं कि मेरे लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। तो एक कोई और बंदा था जिसने मुझसे पहले, एक कोई दिल्ली का इंटीरियर का बंदा था, उसने क्वेश्चन पूछा कि भाई मेरा जो स्टाफ स्ट्रेंथ है वो 2-3 लोगों की है, तो मेरे को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपने बोला कि 2-3 में क्या करोगे, तुम मत करो। तो उसके 2-3 थोड़ी देर के बाद मेरा नंबर आ गया। मैंने कहा अगर मैंने बोल दिया कि मेरे भी 2 ही है स्टाफ, तो आप मेरे को भी मना कर दोगे। और उस टाइम तो फैमिली में और ये चीज चल रही थी कि ये कोर्स करना क्यों है, इतना महंगा कोर्स करना क्यों है, इससे हो क्या जाएगा। और वहां पे अगर आपने सामने आपने भी मना कर दिया तो मेरा तो खत्म बिल्कुल ये तो चीज ही। तो मैंने तो ये बोल दिया आपको कि मेरा 5-6 लोगों का है, 7 लोगों का स्टाफ है, और कर लेंगे हम। तो उन्होंने कहा कि अच्छा 6-7 लोगों का है तो ठीक है, कर तो लो। आपने झूठ बोल के ज्वाइन किया था? हाँ, ये मैंने झूठ बोल के ज्वाइन किया था। अभी बता सकता हूँ, उस टाइम नहीं बता सकता था। चलो ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपको क्या रिजल्ट्स आए? व्हाट आर द रिजल्ट्स दैट यू हैव नाउ? हाउ आर यू वर्किंग? मतलब इतनी छोटी टीम साइज के साथ, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनिंग वाला कंपनी, 2 लोगों के स्टाफ, मतलब बहुत सारी चैलेंजेस होंगे, बट देन व्हाट आर द रिजल्ट्स यू गॉट नाउ? सो फिनोमिनल रिजल्ट्स हैं। सबसे पहला जो बड़ा रिजल्ट है ना, कि जो हम लोग उस टाइम पे 7 डेज अ वीक काम कर रहे होते थे, फैमिली के साथ बड़ा प्रॉब्लम ये चल रहा होता था कि फादर का हमेशा ये था कि, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, ही रिटायर्ड फ्रॉम रिजर्व बैंक, तो बोल रहे कि अरे क्या ये चक्कर है, मतलब हम लोगों ने भी नौकरी करी है, पूरी जिंदगी नौकरी करी है, हम लोग 5 बजे आ जाते थे, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, और 10-11 बजे तक तुम्हारे को मैं फोन करता हूँ 11 बजे आ जाओ, तो तुम कर रहे होते कि हाँ अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, और उसमें भी नहीं आते हो, फिर वो आकर के खाना खा के वापस बैठ जाते हो, ये मतलब। और अब जो चीज है वो ये है कि आई गो टू ऑफिस एक्चुअली 3, मतलब 1 फुल डे एंड 2 हाफ डेज, और आई वर्क फॉर 5 डेज अ वीक। बाकी 2 दिन आई डोंट वर्क एट ऑल। कुछ कोई तो नया आपको व्यक्ति हुआ ऑपरेशंस में अभी कितना टाइम लगता है? मतलब कंपनी चलाने में आपको पूरी कंपनी चलानी है, उसमें कितना टाइम लगता है ऑपरेशंस में? तो पूरी कंपनी, मतलब मैं वो बोलता हूँ कि व्हेन आई गो ऑफिस ऑन मंडे एंड 2 हाफ डेज। एक ट्यूसडे को हाफ डे में सेकेंड हाफ में जाता हूँ, और एक वेंसडे को सेकेंड हाफ में जाता हूँ। सो मंडे को MIS हो जाता है, काम जो है नेक्स्ट वीक का पूरा उनको दे दिया। ट्यूसडे सेकेंड हाफ में उनकी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो वो सब कर दी, बस इतना होता है। बाकी आई डोंट गो टू ऑफिस। आई एम मोस्टली इधर आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, और आई एम इन कैफे, और या फिर कोई मीटिंग वीटिंग कर रहे होते हैं। आई डोंट गो टू ऑफिस एट ऑल।
तो आप पूरा ऑपरेशन अभी क्या कह रहे हो कि 1 फुल डे और 2 हाफ डेज में चला रहे हो? 1 full day, 2 half days. आफ्टर बीइंग एन आर्किटेक्ट, क्योंकि आर्किटेक्चर में तो आपको खुद ही करना पड़ता है, सारी ड्राइंग देखना, बनाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारी ड्राइंग्स ऑडिट के लिए आपके पास ही आती हैं, ऑडिटिंग तो सब आपको ही करना पड़ता है, या क्या हिसाब होता है? So I had a very strong belief when I joined your course कि architecture जो है ना वो it's a practice, it's not a business, क्योंकि उसमें वेरिएशन इतने ज्यादा होते हैं कि उसको स्टैंडर्डाइज किया नहीं जा सकता। तो ये उस टाइम पे मेरा ऐसा सोच थी, ऐसा बिलीफ था उस टाइम पे। ऐसा क्यों तो- मानता था आपका कि स्टैंडर्डाइज हो नहीं सकता इतनी सारी वेरिएशन है? क्योंकि वेरिएशंस बहुत है सर कि प्रोजेक्ट का स्केल में वेरिएशन बहुत है। एक 2 BHK अपार्टमेंट है, कोई 5,000 स्क्वायर फुट का रेजिडेंस है, 50,000 स्क्वायर फुट का रेजिडेंस है, या 5 लाख 10 लाख स्क्वायर फुट के होटल्स हैं। सो स्केल बहुत वेरिएशन है, ज्योग्राफिक लोकेशन बहुत अलग है, कोई राजस्थान में है तो कोई MP में है, कोई कैलकाटा में है। तो ऐसा वेरिएशन बहुत है। फिर क्लाइंट्स जो हैं वो बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं, सबका टेम्परामेंट अलग है, उन सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। प्रोजेक्ट का स्केल फर्क है, प्रोजेक्ट के टाइप भी फर्क है कि कोई फैक्ट्री है तो कोई रेजिडेंस है, कोई होटल है, या कोई ऑफिस है। तो ये ऐसा वेरिएशंस बहुत ज्यादा है। और प्लस एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज बहुत सारी हैं, जिसमें स्ट्रक्चर के हैं, MEP के हैं, ये सब बहुत सारी चीजें, वेरिएशंस बहुत हैं। तो इसलिए चीजें इसलिए ये बहुत होता था। तो आप ये कह रहे हो कि और प्लस क्लाइंट मतलब आपकी बिजनेस में तो क्लाइंट आपको ही चाहता है ना, मतलब आपके अलावा तो काम ही नहीं हो सकता। क्लाइंट तो सिर्फ आपसे ही बात करना चाहता है, क्लाइंट स्टाफ से तो बात करेगा नहीं, आर्किटेक्ट हो आप। करेक्ट, करता ही नहीं है, करना तो नहीं चाहता। ऐसा होता था? 100%, 100% ऐसा ही होता था कि क्लाइंट ही वो कभी भी जूनियर स्टाफ से बात करना ही नहीं चाहता। He always सारे wants- सारे फोन कॉल आपको ही आते थे, क्लाइंट आपको ही चाहता? सारे सारे तो साइट अब से भी हमारे को ही फोन आते थे, सब हमारे को ही फोन आ रहे होते थे। ओके, अब क्या हो रहा है? अब उसका नंबर जो है वो एक्चुअली 30% के अराउंड रह गया है। 70% कॉल्स मेरे पास नहीं आते। ऐसा कैसे? ये जादू हो गया सर। मतलब क्लाइंट आपको फोन नहीं करता, अब स्टाफ से बात कर लेता है? क्लाइंट फोन करता है, बट उस तरीके से बात नहीं होती। अब बहुत इजी तरीके से बात होती है, और उतना फोन नहीं आता कि ये चीज रह गई, वो चीज रह गई। साइट के ऊपर से जो चीजें हैं वो मोस्टली अब सिस्टम्स के थ्रू, स्टाफ के थ्रू सारी चीजें हो जाती हैं। पीरियोडिक चीजें होती रहती हैं, वो सब चलता रहता है, उससे हो जाती हैं। तो अब क्लाइंट डिपेंडेंसी आपके ऊपर नहीं रही? बहुत कम हो गई है, बहुत आप कम। में से आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि रिंकू चौधरी रिंकू चौधरी एक सेकंड रुको, रिंकू चौधरी, रिंकू जी, रिंकू चौधरी, अरे रिंकू चौधरी जी, कहाँ गए रिंकू जी? अरे रिंकू जी, आप कुछ पूछ रहे हो? हाँ जी, रिंकू जी, अच्छा, नॉट अलाउड टू अनम्यूट, एक मिनट। हाँ जी, अब अनम्यूट करिए, अब अनम्यूट कर लीजिए। यस सर। हाँ जी मैडम, या तो आप कोर्स चला लो या मुझे चलाने दो। नहीं सर, आप ही चलाइए प्लीज। ठीक एक्चुअली है। बाय व्हेन डू यू थिंक वी कैन, जो भी टॉपिक्स आप इंटेंड करते हैं आज कवर करने का, किस टाइम तक हो जाएगा? मतलब वो विल इट रन? मैं कोर्स चला रहा हूँ ना, हाँ हाँ, चलाने दो। अच्छा। ठीक है जी, थैंक यू। मेरे को चलाने दो, आप फिक्र मत करो, आपको सब मिल जाएगा। आप क्यों उछल रहे हो, मत टेंशन लो। आई विल गेट ऑल ऑफ इट डन, राइट? ओके सर।
मतलब ठीक I है। was there in the 1-day course also, and I intend to do the 9-month course also, but तो मैडम रुक जाओ ना, मैं सब करवा रहा हूँ, रुक जाओ, ये जरूरी है ज्यादा अभी ठीक है, आप सबके लिए। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, सॉरी नमित, बताओ जी। तो मैं क्या कह रहा था आपको, आप सॉरी आप क्या कह रहे थे? सो मैं एक इस चीज पे थोड़ा सा से फ्यूल अलाउ सर। हाँ हाँ मैंने ना आपसे पहले भी मैंने कई ऐसे कोर्सेज किए थे, है ना, जिसमें बहुत ज्ञानबाजी हो जाती थी, बट इस आपके साथ में जो किया ना, उसके बाद जो रिजल्ट्स आए हैं वो फिनोमिनल है। और उससे पहले जो किया था ना, उसमें मेरे को ज्ञानबाजी बहुत होती थी। सो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड रिकू जी कि कीप कंप्लीट फेथ ऑन राहुल सर, और जो ये बोले बस उनका आंख बंद करके अगर आप कर लेते ना, यू विल बी थ्रू। वेरी नाइस जी। तो आप, थैंक यू नमित फॉर दैट। एंड तो आप कह रहे थे कि हाँ पहले आपके ऊपर सारी डिपेंडेंसी थी, अब डिपेंडेंसी आपसे हट गई है, अब स्टाफ संभाल लेता है काम। इज दैट व्हाट यू सेइंग? यस। वेरी गुड। और आप कौन से शहर में हो? आई फॉरगॉट, मतलब आपने बताया, सॉरी। मैं जयपुर से हूँ सर। आप जयपुर से हो, गुड। तो आप कह रहे हो कि आपका हर प्रोजेक्ट कस्टमाइज्ड है, यूनिक है, यूनिक है। आपका पूरा यूनिक है। करेक्ट। तो एवरी प्रोजेक्ट इज डिफरेंट। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि सेम 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 आ रही हो, असेंबली लाइन नहीं है, मशीन नहीं चल रही कि भाई सेम सेम प्रोडक्ट बन के जा रहा है। हर प्रोजेक्ट एक यूनिक प्रोजेक्ट है, हर आदमी एक यूनिक आदमी है, उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट अलग है, और प्रोजेक्ट पूरा का पूरा ही अलग है। करेक्ट। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो वेरी मैं नाइस। जब ऐसे हम लोग 4 मंथ में 4 डेज में बैठे होते थे, तो या 9 मंथ में भी जब बैठे होते थे, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग शेयरिंग करने आ रहे होते थे, और हम लोग यही सोच रहे होते थे कि कोई सर्विस इंडस्ट्री से आए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और इन सब चीजों में तो ना स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस हो जाती हैं, वो बन जाती हैं, और वो उसको काम करने के लिए आदमी को दिमाग नहीं लगाना है। बट वो सर्विस इंडस्ट्री में होना बड़ा मुश्किल है, वो हो नहीं सकता। वेरी नाइस जी। तो अब आपके नेट ऑफ नेट क्या रिजल्ट्स हैं? आप कह रहे हो कि अभी आपको पहली बात तो, और आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या फर्क पड़ा है? सो पर्सनल लाइफ में ये फर्क पड़ा सर कि अब हमारा ऑफिस जो है 6:30 मतलब एकदम खत्म हो जाता है, बंद। नोबडी इज देयर आफ्टर 6:30। तो स्टाफ के भी सारे काम खत्म होने लग गए? हाँ, स्टाफ के भी सारे खत्म होने लग गए। जो चीजें टाइमली डिलीवर होने शुरू हो गई, बहुत सारी चीजें, और उसके बाद क्वालिटी फिनोमिनली इम्प्रूव हो गई। उतना अब दिमाग लगाना नहीं पड़ता। प्रॉफिट में अगर मैं बोलूँ तो वो हम, सो आई डिड दिस कोर्स टेकिंग लोन। मैंने ये लोन लेकर के किया था, अभी वो सारे लोन्स खत्म हो गए हैं। क्या बात कर रहे हो? आप कह रहे हो कोर्स आपने लोन लेके किया था? लोन लेके किया था मैंने ये वाला। पैसे भी नहीं थे लोन कोर्स करने के? हाँ, पैसे भी नहीं थे, मतलब टर्नओवर मत पूछिएगा उस टाइम का। तो तो आपका टर्नओवर कितना बढ़ गया पहले से? पहले क्या था, अब क्या है? कितने प्रोजेक्ट पहले करते थे, अब कितने प्रोजेक्ट करते हो? प्रॉफिट्स कितना बढ़ गया? सो प्रोजेक्ट का स्केल जो है वो फिनोमिनली बढ़ गया, मतलब वो ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स हो गया। सो पहले अगर हम लोगों का जो मैक्सिमम हमने जो घर किया था साइज, वो 5,000 स्क्वायर फुट का होता था, अभी हम 30,000 स्क्वायर फुट के रेजिडेंसेस कर रहे हैं, होटल्स कर रहे 30,000 हैं। स्क्वायर फीट रेजिडेंसेस? रेजिडेंसेस 12 बेडरूम 10 बेडरूम्स के रेजिडेंसेस कर रहे हैं। और जिसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट जो हमारी उस टाइम पे इंटीरियर कॉस्ट अगर मैं बात करूं तो 4,000-5,000 रुपए स्क्वायर फुट की होती थी, अभी 20,000-25,000 स्क्वायर फुट की कॉस्टिंग आती है उसमें। आप क्या बोल रहे हो? आप कह रहे हो पहले आप 4,000 रुपए स्क्वायर फुट कॉस्ट क्लाइंट से पैसे लेते थे, अब कितना लेते नहीं हो? नहीं, मैं नहीं लेता था। अच्छा, क्लाइंट जो दे, सॉरी वो मैंने कहा ये क्या कह रहे हो? ओके। इंटीरियर अगर उनका आर्किटेक्चर इंटीरियर का मैं प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करूं, तो उन लोगों का प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आता था वो पर स्क्वायर फुट वो 4,000 रुपए 5,000 रुपए स्क्वायर फुट का होता था। अभी जो है वो 25,000 रुपए तक के भी हम लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जहां पे उनका कॉस्टिंग इतना आएगा। सो फिनोमिनली बढ़ गया 5 गुना, और वो उसमें स्केल जो है वो बढ़ गया है।
प्लस बहुत सारे अभी उस टाइम पे हम लोग मोस्टली रेजिडेंसेस वगैरह में कर रहे होते थे। वी डिड अ प्रोजेक्ट, हम लोग एक हायत का हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया था। अभी हम लोग कई सारे होटल्स के प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफिकली हम लोगों ने एक्सपैंड कर लिया है। कहाँ पहले कहाँ करते थे, अब कहाँ करते हो पहले जोग्राफिकली? जयपुर में ही करते थे। अभी हम लोग उदयपुर में होटल्स कर रहे हैं 2, पुष्कर में कर रहे हैं। अभी वेरी सून एक आगरा में स्टार्ट होगा प्रोजेक्ट। एक अभी हम सांची में कर रहे हैं, एमपी में। दिल्ली में हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंटीरियर्स के। दिल्ली में जाके प्रोजेक्ट कर रहे हो जयपुर से? यस। वाओ। सो आप कह रहे हो कि आपके प्रोजेक्ट के साइजेस हैव गॉन अप बाय 3-4x यस। एंड पहले कितने प्रोजेक्ट करते थे और इस समय कितने प्रोजेक्ट कर रहे हो? हाउ मच इज द स्केल, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स गॉन अप? सो ये भी एक फिनोमिनल चीज हुआ है। पहले हम लोग ऑन एन एवरेज हमारा अगर एक साथ चल रहा था 4 एक प्रोजेक्ट्स अगर हम लोग कर रहे होते थे, तो 4 से 5 प्रोजेक्ट में जाकर के हमारा पूरा सिस्टम हिल गया होता था। सब गाली गलौज शुरू हो जाती थी। कभी क्लाइंट हमारे को दे रहा होता, हम स्टाफ को दे रहे होते थे। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 25 प्रोजेक्ट्स हम लोगों के चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? 25 to 30 प्रोजेक्ट्स। 4 प्रोजेक्ट से 25-30 प्रोजेक्ट पे आ गए हो आप? हाँ जी, वो चल रहा है। वाह। और अभी आप कह रहे हो 1.5 days 2 days में आप पूरा काम संभाल लेते हो? संभाल लेते हैं। क्लाइंट कॉल्स खत्म हो गए 25-30 प्रोजेक्ट में? हाँ, सो 30% रह गया है मुझसे। मतलब वो पहले जो मेरा फोन चालू ही रहता था, अभी दिन में शायद 4 या 5 कॉल्स आ रहे होते हैं, 3-4 बट ऐसे कैसे करते हो? हर प्रोजेक्ट कस्टमाइज्ड है, 25-30 प्रोजेक्ट कस्टमाइज्ड अपने आप। और ये मतलब ये प्रोजेक्ट अपने आप ऑटो पायलट पे चल रहा है, अपने आप होते हैं, अपने आप ड्राइंग बनती है, अपने आप चला जाता है कि आपको घुस के सारी ड्राइंग बनानी पड़ती है, साइट विजिट्स करनी पड़ती है अब, जैसे पहले हर रोज साइट विजिट्स करते थे? साइट विजिट होती हैं पर उतना फ्रीक्वेंट नहीं होती। अब वो लोगों का कर लेते हैं, लोग कर लेते हैं। और जो ड्राइंग्स जो उस टाइम पे हम लोग कंप्लीटली हम ही कर रहे होते थे, अब तो मेरे को याद नहीं है कि ड्राइंग हम लोगों ने खुद ने हाथ से कब बना के करी थी लास्ट। आप ड्राइंग अब बनाते नहीं, अब सारा स्टाफ बना लेता है? सब वो लोग करते हैं। और पहले आप लोग सारी ड्राइंग बनाते थे, सारी रात सारी बैठ? सारी हमारी हमारी की होती थी, हाथ से खुद बैठ करके करी है। वाह। तो ड्राइंग आपने डेलीगेट करके मतलब वो दे दिया, आप स्टाफ, मगर आप डर नहीं लगता क्वालिटी खराब नहीं हो गई उससे? स्टाफ काम कर रहा है, आप काम कर रहे हो, जमीन आसमान का फर्क पड़ता होगा। सो चेकलिस्ट बना दी सर, चेकिंग के सिस्टम्स बना दिए। 2-2 3-3 लेवल पे चेकिंग होती है। पहले एक बंदा खुद उस चेकलिस्ट के हिसाब से खुद चेक करता है, फिर एक दूसरा जो सीनियर बंदा है वो उसको चेक करता है। तो पूरे थर्ड आपने ऑडिटिंग का पूरा सिस्टम बिठाया हुआ है? ऑडिटिंग का सिस्टम है। वेरी नाइस। आपका टर्नओवर कितना बढ़ गया? टर्नओवर मेरा लास्ट ईयर का अगर आप में देखेंगे तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज 87% इंक्रीज हुआ है। वेरी नाइस। नहीं, मैं कह रहा हूँ बिफोर एंड आफ्टर बीसीआई आपका टोटल टर्नओवर कितना बढ़ा होगा? बिफोर एंड आफ्टर बीसीआई, बिफोर तो एक्चुअली चेक ही नहीं करते थे शायद। मेरा ख्याल से उस टाइम पे तो 30-35 लाख का शायद टर्नओवर होगा। 30 लाख रुपए का टर्नओवर था आपका? हाँ हाँ। अभी अब अभी 2021 में हम लोगों ने कंप्लीट किया था और अभी 23 चल रहा है, तो 2 साल हो गए। 22? हर साल अभी मेरा इस साल मेरा 87% का इंक्रीज है। लास्ट ईयर मेरा 93% का था। और टर्नओवर अभी कितना हो गया? टर्नओवर अभी 2 CR से ऊपर हो गया। और आप कह रहे हो हर साल आप करीब 87, 89, 90% प्रॉफिट ग्रो कर रहे हो? करेक्ट। स्टाफ कितने बड़े? स्टाफ उस टाइम पे 2 थे, अभी 15-16 लोगों का स्टाफ है। 15-16 लोगों के स्टाफ के बावजूद आप प्रॉफिट्स अपने करीब करीब डबल कर रहे हो? हाँ जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये खर्चे वर्चे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, वो तो अच्छा ही है। और अभी तो और बंदे हायर कर रहे हैं, चल रही है वो भी चीजें। वेरी नाइस, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, रियली गुड, रियली नाइस। और पर्सनल लाइफ कैसी है? पर्सनल लाइफ मजे हैं सर। फादर जो पहले हमेशा, फादर इन लॉज की हमेशा कंप्लेंट रहती थी कि तुम लोग तो मिलते नहीं हो, दिखते नहीं हो।
एटलीस्ट एक मील तो साथ में कर लिया करो। तो अब वो चीजें, अब वो शिकायत थोड़ी कम हो गई है। ओके, छुट्टी पे जाने लग गए हैं हम लोगों ने, 5-6 साल में कोई छुट्टी नहीं ली थी। अब ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे महीने एक छुट्टी हो जाती है हम लोगों की। हर तीसरे चौथे महीने छुट्टी ले हर लेते हो? तीसरे चौथे महीने छुट्टी हो जाती है। तो जब छुट्टी होती है तो फिर काम बंद नहीं हो जाता? नहीं, ऑफिस चलता है, ऑफिस अपने आप चल रहा होता है। वेरी नाइस। तो आप कह रहे हो कि आर्किटेक्चर की फर्म में भी, कोई भी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में आपके और दोस्त होंगे सर्विस सेक्टर वाले, तो सर्विस सेक्टर में भी ये सारे सिस्टम्स लगते हैं, हाँ, है ना? एब्सोल्युटली लग सकते हैं, एब्सोल्युटली। वो सबसे बड़ा चेंज जो आया था ये बीसीआई करने के बाद, वो दिमाग का परसेप्शन जो था वो चेंज हो गया था। जो ये बिलीव था कि ये हो नहीं सकता, फिर आपने वो डंडा दे दे के कि थोड़ा करो, फिर लगा कि कुछ कुछ चीजों को स्टैंडर्डाइज करने लगे, करते करते बहुत सारी चीजें हो गई अभी। सो ये एक फैंटास्टिक चीज था। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, रियली गुड, ग्रेट। R&D का कोई पूछ रहा था? कि लोग जो बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक रुकते नहीं थे, अभी पीपल आर हैप्पी वर्किंग विद अस, व्हाई? probably in spite of the fact कि we are not very good pay masters. जो लोग फिर भी people are very happy working with us. वेरी गुड। तो लोग अब आपसे, आपके साथ काम करके खुश हैं? खुश हैं। वेरी नाइस। और सेल्स वेल्स और ये सब के लिए टाइम मिलता है आपको? फैमिली के लिए टाइम मिलता है? हाँ, so 2 दिन 3 दिन I'm mostly meeting people, new people. तो अभी 2 दिन 3 दिन आप सेल्स ही कर रहे हो? 2-3 दिन सेल्स होता है। नो वंडर 25-30 प्रोजेक्ट हो गए ना, नहीं तो प्रोजेक्ट कैसे बढ़ते? हाँ, अभी जो Right. हमारा टेंशन था अभी लोगों के पास चला गया टेंशन। गुड गुड गुड। और ये जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी होती थी, जैसे आप कह रहे हो लोग अपने रिपोर्ट नहीं भरते, वो जो दूसरे कंसल्टेंट्स हैं, MEP कंसल्टेंट, उसने रिपोर्ट नहीं दी, उसने ड्राइंग नहीं भेजी, उसने ऑडिट नहीं करी, तो आपका तो काम रुक जाता होगा। अभी ऑन टाइम डिलीवरी चल रही है? ऑन टाइम डिलीवरी चल रही है। वेरी नाइस। कंसल्टेंट्स भी हमारे साथ, कुछ कंसल्टेंट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया कि ये सही है, कुछ वो लोग भी चेंज हो गए हमारे साथ काम करते करते। प्लस हमारे कुछ फॉलोअप्स इस तरह से हो गए कि वो उनको भी डंडा चला जाता है, तो वो भी देते हैं। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी नाइस। ठीक है जी, ग्रेट, ऑसम, रियली नाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर joining us and being with us today, for your sharing, and especially for being part of, मतलब सर्विस सेक्टर में लोगों को लगता है कि ये हो नहीं सकता, कस्टमाइज प्रोडक्ट है, हो नहीं सकता, क्लाइंट मुझे ही चाहता है, हो नहीं सकता, तो उसमें भी ऑटो पायलट होता है जहां क्लाइंट आपको ही चाहता है। Correct. Very good. Great. So will it work if you give your number, or that's not a good idea for you, or do you want, can you? Sure, I can share my number. Great. तो आप एक बार अपना नंबर शेयर कर लीजिए, so that किसी को आपसे बात करनी हो, व्हाट्सएप करना हो, वो बात कर लेंगे। ओके, ग्रेट। सो नमित, आपने मुझे भेज दिया है। अच्छा, मैं गुड जी, गुड 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 sorry, गुड। मेरा वो 1 सेकंड गलत नंबर चला गया। हाँ, करेक्ट नंबर दे दीजिए। लोग फोन करेंगे, बोलेंगे क्या नमित अपना नंबर देना चाहता था तो गलत नंबर क्यों दे दिया? Okay, great. So guys, ladies and gentlemen, can we all unmute and thank Namit? Thank you, Can- Namit. Thank you so much. Thank you, Namit. हमारे नीचे Thank you so much, Namit sir. You already Thank you. बहुत awesome. Great. Thank you. Sir, hi. I just want to share a story. Thank you. Yes, please share a story. Sir, I met Namit ji. Namit ji, how are you? Is he still here? Good. And I met you working out of a coffee shop in Hilton, if you remember. Oh yes, now I remember very much. Amit ji Gehlot. And
but unluckily we finalized the person who was doing, he was done Hilton, but I've met him. So one of the benefits of working out of a coffee shop, maybe you get to meet the clients. Very good. So you run a hotel. We're making a hotel. For that reason, we came to see the Hilton, was made Hilton and everything. There we met Mr. Namit. Okay, So very we're good. doing a lot of projects with Amit sir also. Super. Hotel ka residences, we're doing Sir, projects with them too. sir. Great. I'll connect with you, sir. Wonderful. Sir, Great, wonderful. great, Haji, great. Thank you. Excellent. Very nice. Okay, Ji. Thank you so much, Namit. Thanks for being here on such Thank you short so much. notice. Thank you so Last much. minute पे ही सबको उठाता हूँ कि अच्छा ठीक है जी कल परसों आ जाओ. Suddenly it hit them out of the blue. Thank you, Namit. Thanks a lot for taking out your time and being with us today and sharing your sharings. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, Namit. And all the best. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Ji. Okay, bye-bye.